Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. Speaking to media at Raipur Airport, former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel highlighted the importance of the ongoing Congress Working Committee CWC meeting, citing its relevance to the upcoming Bihar elections. He noted recent strong reactions to issues like SIR and alleged vote theft, adding that Rahul Gandhi had personally led a yatra in Bihar to address these concerns. Baghel emphasized that the party is mobilizing efforts कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बिहार के चुनाव भी है और अभी SIR के मुद्दे पे और वोट चोरी के मामले में वहाँ ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। राहुल जी खुद 16 दिन वहाँ यात्रा किए, तो एक इस परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण ये वर्किंग कमेटी की बैठक है। सर, ये नरसिंह कंवर जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कलेक्टर को हटाया जाने की मांग, अगर वो मान देंगे तो धरना देंगे, खुद धरने पे बैठूंगा बोल रहे हैं। आना सही रवैया ये भाई पहले भी देख चुके हैं कि राज्यपाल और कलेक्टर बैठे हुए हैं, नरसिंह कंवर खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी में अब वरिष्ठ नेता की क्या स्थिति है, कांग्रेस के बारे में बड़ी टिप्पणी करते हैं भाजपा के लोग। अब भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता नरसिंह कंवर के अल्टीमेटम पे क्या बयान देते हैं, ये देखना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बिहार के चुनाव भी है और अभी SIR के मुद्दे पे और वोट चोरी के मामले में वहाँ ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। राहुल जी खुद 16 दिन वहाँ यात्रा किए, तो एक इस परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण Former ICMR Director General Dr. Soumya Swaminathan has raised alarm over the growing impact of non-communicable diseases (NCDs) on India's economy and GDP, calling them a burden. She stressed the urgent need for early screening and diagnosis to curb their rise. Early screening diagnosis required to control and cure increasing non-communicable diseases in India, she said, highlighting the long-term health and financial implications if left unchecked. Her remarks underscore the importance of preventive health care in national policy. Yes, it's a difficult thing to understand what is an NCD because it came from communicable diseases like TB, diphtheria, cholera, polio. These are all infectious communicable diseases. Then we said non-communicable diseases, NCD, means it does not spread from one person to another. It's non-communicable. But actually it doesn't tell you what it is. So it has a lot of diseases which come under that. But the main ones are diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney disease, brain disease like Parkinson's or dementia. Also the, bone. So anything which is not communicable, which is not infectious, comes under non-communicable. Mental health and psychiatric problems, all this comes under that. So it's a large group of diseases, and over the years, we have seen in India and in the world, non-communicable diseases are increasing, communicable diseases are going down because we have vaccines, we have antibiotics, we have safe drinking water, sanitation. So those diseases are going down, these diseases are going up. The risk factor for these diseases is diet, poor diet, physical inactivity. We are all becoming immobile and go everywhere in a car or a bus or a scooter. We are not
doing any physical exercise. The third is tobacco, and alcohol is another risk factor. Minister Giriraj Singh speaking in Begusarai affirmed that the NDA will contest the upcoming Bihar elections under the leadership of Nitish Kumar and Prime Minister Narendra Modi. He expressed confidence in a sweeping victory, stating, "We will win the Bihar elections with a huge majority." His remarks signal a strong push by the alliance ahead of the polls. तेजस्वी यादव जी से मैं निवेदन करूंगा, मां कपूत को नहीं आशीर्वाद देते। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वो कभी सत्ता सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने यानी उनके पिताजी ने जो बिहार के साथ किया वो अब दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, करोड़ों बेटा मां दुर्गा से यही आशीर्वाद मांगता है, हे मां, लालू जी के खानदान को फिर से सत्ता में नहीं कभी आने दीजिए, नहीं तो बहु बेटी की इज्जत। हम लोग बेगूसराय से चलते थे पूर्णिया के लिए, लाखों में कन्भाई, फिर आगे महेशखुट में कन्भाई, पूरा बिहार। तेजस्वी यादव मां दुर्गा का फोटो लगाकर आशीर्वाद मांगे, वीडियो भी शेयर किया है। तेजस्वी यादव जी से मैं निवेदन करूंगा, मां कपूत को नहीं आशीर्वाद देते। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वो कभी सत्ता सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने यानी उनके पिताजी ने जो बिहार के साथ किया वो अब दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, करोड़ों बेटा मां दुर्गा से यही आशीर्वाद मांगता है, हे मां, लालू जी के खानदान को फिर से सत्ता में नहीं कभी आने दीजिए, नहीं तो बहु बेटी की इज्जत। हम लोग बेगूसराय से चलते थे पूर्णिया के लिए, लाखों में NCP MP Sunil Taktera stated that Deputy Chief Minister Ajit Pawar has been actively coordinating with the district collectors in Bid, Dashiv, Solapur and other rain-affected regions. Since morning, Pawar is expected to visit the Disaster Management Department's control room today to assess the situation and meet to the impacted districts tomorrow to oversee relief efforts. वेट वेगळा करण्यासाठी होती, परंतु कालपासून मराठवाड्यामध्ये जी अतिवृष्टी झालेली आहे, संभाजीनगर, नांदेड, जालना, धाराशिव, सोलापूर जिल्ह्यात मगाचपासूनचा सगळा वेळ त्यांचा त्या ठिकाणचे जिल्हाधिकारी, इरिगेशन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याजवळच्या संपर्कामध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे आणि या संबंध आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तिथल्या नागरिकांना बाहेर कसं काढता येईल या दृष्टिकोनातून त्यांनी सूचना दिल्यात। माझ्या माहितीप्रमाणे कदाचित उद्या सकाळपासून त्या सोलापूर, धाराशिव, बीड या जिल्ह्यांचा दौरासुद्धा त्या ठिकाणी करणार आहेत आणि त्यांचं आपत्कालीन कक्षामध्ये सुद्धा दादा सकाळी जाऊन आले होते। शेवटी अशा वेळेला नागरिकांच्या मदतीसाठी धावणं हा दादांचा जो स्थायीभाव आहे, त्याप्रमाणे संबंध प्रशासनाला त्यांनी योग्य त्या सूचना दिलेल्या आहेत। GSTचा उत्सव देशभरामध्ये साजरा होतोय। मी स्वतः काल निजामपूर, माणगाव, रोहा बाजारपेठेमध्ये जाऊन व्यापारी मित्रांना शुभेच्छा दिल्या। इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या ऐतिहासिक निर्णयाच्यामुळे GST 2 म्हणजे उद्याचं धोरण नवीन पिढीसाठी, देशासाठी, देशाच्या उन्नतीसाठी, भरभरासाठी, सामान्य ग्राहकांच्यासाठी एक शक्ती देणारं ठरणार असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून, लोकसभा सदस्य म्हणून मोदी साहेबांचे आणि केंद्र सरकारचे मी मनापासून आभार मानतो आहे। मी ज्यावेळेला व्यापारी मित्रांच्याकडे गेलो त्यावेळेला खूप मोठ्या प्रमाणावरती ग्राहकांची गर्दी खरेदीसाठी आलेली होती आणि ग्राहकांच्या मनामध्ये सुद्धा खूप आनंदाचं वातावरण या क्रांतिकारी
केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्यामुळे झालेला आहे. दादांच्या आणि माझी भेट वेगळ्या कारणासाठी होती, परंतु कालपासून मराठवाड्यामध्ये जी अतिवृष्टी झालेली आहे संभाजीनगर, नांदेड, जालना, धाराशिव, सोलापूर जिल्ह्यात, मगाचपासूनचा सगळा वेळ त्यांचा त्या ठिकाणचे जिल्हाधिकारी, इरिगेशन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याजवळच्या संपर्कामध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे. आणि या संबंध आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तिथल्या नागरिकांना बाहेर कसं काढता येईल या दृष्टिकोनातून त्यांनी सूचना दिल्यात. माझ्या माहितीप्रमाणे कदाचित उद्या सकाळपासून त्या सोलापूर, धाराशिव, बीड या जिल्ह्यांचा दौरासुद्धा त्या ठिकाणी करणार आहेत. आणि त्यांचं आपत्कालीन कक्षामध्ये सुद्धा दादा सकाळी जाऊन आले होते. शेवटी अशा वेळेला नागरिकांच्या मदतीसाठी धावणं हा दादांचा जो स्थायी भाव आहे, त्याप्रमाणे संबंध प्रशासनाला त्यांनी योग्य त्या सूचना दिलेल्या आहेत. GSTचा उत्सव देशभरामध्ये साजरा होतो. मी स्वतः काल निजामपूर, माणगाव, रोहा बाजारपेठेमध्ये जाऊन व्यापारी मित्रांना शुभेच्छा दिल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या ऐतिहासिक निर्णयाच्यामुळे GST 2 म्हणजे उद्याचं धोरण नवीन पिढीसाठी, देशासाठी, देशाच्या उन्नतीसाठी, भरभरासाठी, सामान्य ग्राहकांच्यासाठी एक शक्ती देणारं ठरणार असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून, लोकसभा सदस्य म्हणून मोदी साहेबांचे आणि केंद्र सरकार. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Saib praised the security forces for their continued success in anti-Naxal operations following a major encounter in Narayanpur district. He confirmed that 2 Central Committee members of the CPI Maoists were neutralized during the operation and stated the Jawans are getting continuous success in our operations against Naxals. 2 CC members were neutralized today. I salute the Jawans. The encounter marks a significant blow to the Maoist leadership and reinforces the state's commitment to restoring peace in the region. जी हाँ, वो लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है. लगातार ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और आज 2 CC मेंबर न्यूट्रलाइज हुए हैं. तो मैं हमारे जवानों को उनके साहस के लिए उनको नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं. जी हाँ, वो लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है. लगातार ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और आज 2 CC मेंबर न्यूट्रलाइज हुए हैं. तो मैं हमारे जवानों को उनके साहस के लिए उनको नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं. जी हाँ, वो लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है. लगातार ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और आज 2 CC मेंबर न्यूट्रलाइज हुए हैं. तो मैं हमारे जवानों को उनके साहस के लिए उनको नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं. जी हाँ, वो लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है. लगातार ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और आज 2 CC मेंबर न्यूट्रलाइज हुए हैं. तो मैं हमारे Former Rajasthan Chief Minister and senior Congress leader Ashok Gehlot voiced strong criticism of the ruling party's ideological stance, stating that their slogan of Hindu Rashtra has weakened a lot. He urged leaders to prioritize pressing national concerns such as unemployment, inflation and starvation rather than divisive narratives. Gehlot emphasized the need for harmony in the country and described the current political trajectory as inappropriate, calling for a shift toward inclusive governance and economic stability. नारा था काफी कमजोर पड़ गया है. मोदी जी का बेड़ा भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि कब तक हिंदू राष्ट्र की बात करें. बेरोजगारी यहाँ पर, महंगाई यहाँ पर, भूखमरी यहाँ पर, अच्छी करोड़ लोगों को दे रहे हो, फ्री राशन दे रहे हो इस देश के अंदर है. उसी चिंता करनी चाहिए ना देश को, बजाय ये कि आप खाली हिंदू मुस्लिम की बात करें. तो ये बातें करना हिंदू हिंदू की वजह अलग बात है, और देश के अंदर प्यार मोहब्बत की जरूरत है. संविधान में लिखो लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, उसकी जरूरत है. देश को एक रखना, अखंड रखना है. तो और इनका रास्ता उचित नहीं है मोदी जी की गवर्नमेंट का और बीजेपी का, ये मैं कह सकता हूँ. और ये एक उदाहरण है
क्या कारण है कि भाई एनआईए जो है इसको प्रायोरिटी नहीं दे रही। परसों प्राइम मिनिस्टर आए 25 को, पहले आए 1 महीना पहले आपके अमित शाह जी, तब मैंने कहा था अमित शाह जी को टैग किया था मेरे ख्याल में एक्स में ट्विटर में, मैंने लोगों को जवाब देंगे इसके ऊपर बोलेंगे, क्योंकि चुनाव मुद्दा इन्होंने मेरे खिलाफ बनाया। हमारे चुनाव हारने का और कारण भी हो सकता है, पर एक मुख्य कारण ये भी था कि 5 लाख बनाम 5 लाख हिंदू को, कन्नालाल की फैमिली को, 50 लाख मुसलमान को, ये मुद्दा बनाया। लोगों के दिमाग में बढ़ गया कि वास्तव में 5 लाख दिए बेचारे को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को। ये बेईमानी करके चुनाव जीते हमारे। राष्ट्रवाला इनका जो नारा था काफी कमजोर पड़ गया है। मोदी जी का ग्राह भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि कब तक हिंदू राष्ट्र की बात करें। बेरोजगारी यहाँ पर, महंगाई यहाँ पर, भूखमरी यहाँ पर, अच्छी करोड़ लोगों आप दे रहे हो, फ्री राशन दे रहे हो इस देश के अंदर है, उसी चिंता करनी चाहिए ना देश को, बजाय ये कि आप खाली हिंदू मुस्लिम की बात करें। तो ये बातें करना हिंदू की वजह अलग बात है, पर देश के अंदर प्यार मोहब्बत की जरूरत है। संविधान में लिखो लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, उसकी जरूरत है। देश को एक रखना, अखंड रखना है तो, और इनका रास्ता उचित नहीं है मोदी जी की गवर्नमेंट का और बीजेपी का, ये मैं कह सकता हूँ। और ये एक उदाहरण है, क्या कारण है कि भाई एनआईए जो है इसको प्रायोरिटी नहीं दे रही। परसों प्राइम मिनिस्टर आए 25 को, पहले आए 1 महीना पहले आपके अमित शाह जी, तब मैंने कहा था अमित शाह जी को टैग किया था मेरे ख्याल में एक्स में ट्विटर में, मैंने लोगों को जवाब देंगे इसके ऊपर बोलेंगे, क्योंकि चुनाव मुद्दा इन्होंने मेरे खिलाफ बनाया। हमारे चुनाव हारने का और कारण भी हो सकता है, पर एक मुख्य कारण ये भी था कि 5 लाख बनाम 5 लाख हिंदू को, कन्नालाल की फैमिली को, 50 लाख मुसलमान को, ये मुद्दा बनाया लोगों के दिमाग में। Union Minister and BJP leader Jitan Ram Manjhi launched a scathing attack on RJD leader Tejashwi Yadav, urging him to apologize for allegedly using foul language against Prime Minister Narendra Modi's mother. Manjhi accused Tejashwi of ignoring the developmental strides made in Bihar, contrasting the current 24-hour electricity supply with the Jungle Raj and limited power availability during Lalu Prasad Yadav's tenure. He remarked he wants his lantern to be lit, but the people of Bihar want 24-hour electricity. Manjhi further stated that Tejashwi should wash his sin by praying to Ma and added, if he is not seeing, I pray for good sense to him so that he can see all the good works that have been done. को माँ से माफ़ी मांगना चाहिए कि हे माँ, हम अपने मीटिंग में एक जगह नहीं 2-2 जगह नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के प्रति अभद्र बातें का उच्चारण हुआ है, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। रही बात बिहार की समृद्धि और सुख, तो ये तो उनको शायद नहीं दिखेगा, इसलिए कि 2005 के पहले उनके पिताश्री के समय में जंगल राज था। हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, हम लोगों ने नहीं कहा था। वो कैसा सुख समृद्धि की बात करते हैं। उस समय जब 700 मेगावाट बिजली मिलती थी, भगजोगनी ऐसा बिजली आती थी। आज साहब 8400 मेगावाट बिजली मिलती है, घर घर बिजली है, 24 घंटा बिजली मिलती है। तो क्या ये उनको नहीं भाता है? क्या उनका लालटेन नहीं जलेगा? बात सही है, इसीलिए वो माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा लालटेन जले। लेकिन बिहार की जनता ये 24 घंटा बिजली चाहती है, बिजली आज आ रही है, इसीलिए भगवान से हम लोग प्रार्थना किया है और करते हैं। इसलिए उनको तो पश्चाताप करना चाहिए, माँ से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे लोग ये हम लोग गलती किया है, उसको आप माफ़ कीजिए। उनको ये समझ में नहीं आता है कि आज बिहार के कोई कोने से हम लोग 4 घंटा में पटना चले आते हैं। अब पहले 8-8 घंटा 10-10 घंटा हिचकोले खाते खाते आते थे। गया में आप लोग हैं 4 घंटा में पास जाते थे पटना, आज हम लोग 1 घंटा 40 मिनट में पटना चले जाते हैं। ये नहीं दिखता है क्या उनको? ये नहीं सोचता है क्या? अगर ये नहीं सोचता है तो हम माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, तेजस्वी को कम से कम और कांग्रेस वालों को कम से कम सद्बुद्धि दीजिए कि जो काम हो रहा है शांति और अमन।
Haryana Chief Minister Naib Singh Saini extended warm Navratri greetings, expressing hope for continued prosperity and greenery in the state. Speaking from Chandigarh, he praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, highlighting the swift implementation of a major GST reform, promised during the August 15 Red Fort address. In just 1 month, a major reform has been made in GST and it has been implemented from today. Saini noted he emphasized that the reform aims to benefit the common man and aligns with Modi's vision to bring happiness to every home. सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों देशवासियों को आज माता के नवरात्रि शुरू हुए हैं उनकी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माता के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा हरा भरा रहे और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े। मैं प्रदेश और देश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना मां चरणों में करता हूं और सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। ये नवरात्रे ये सब के लिए विशेष नवरात्रे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद के साथ बधाई भी देता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को जो लाल किला के ऊपर से जीएसटी के करों में एक बड़े सुधार की बात कही थी कि इसका लाभ आम जन को मिलेगा। मात्र 1 महीने के अंदर उस जीएसटी के अंदर बड़ा सुधार किया है और आज से उसको लागू किया है। आज नवरात्रों का प्रथम दिन है, आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, हर घर में खुशियां आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। बहुत सारे जीएसटी को जीरो किया। Congress MP Manish Tiwari raised serious concerns over alleged manipulation of voter rolls, calling it a threat to India's democratic foundation. Speaking in Chandigarh, he stated, "The voter roll is the foundation of the democratic system. If doubts begin to arise about it, democracy itself is put into question." Tiwari claimed that recent findings point to systematic tampering and criticized the custodial institutions for responding with heated debate instead of introspection. He said the Congress-led campaign, supported by all India bloc parties, aims to safeguard the electoral process and restore public trust. ढांचे की बुनियाद उसकी मतदाता सूची होती है और अगर मतदाता सूची के ऊपर आशंकाएं खड़ी होनी शुरू हो जाएं तो लोकतंत्र के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि बुनियादी जो दस्तावेज है, जिस दस्तावेज के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरंभ होती है और संपन्न होती है, वो मतदाता सूची। और पिछले कुछ दिनों में ये पाया गया है कि मतदाता सूची के साथ एक संयोजित तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है। जो संस्था इस सारी प्रक्रिया की कस्टोडियन है, जिसकी देखरेख में ये सारा कार्य संपन्न होता है, जब उनके समक्ष ये बातें रखी जाती हैं तो उनकी तरफ से उसके ऊपर आत्मचिंतन और पुनर्निरीक्षण की जगह एक बहुत ही उग्र तरीके का संवाद देखने को मिलता है। और इसलिए इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने के लिए ये जो अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सारी इंडिया ब्लॉक की पार्टी, राजनीतिक दल शामिल हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के लोकतंत्र को
और भारत की जो जमहूरियत है जिसके ऊपर हम सब फख्र करते हैं। और Delhi Chief Minister Rekha Gupta took part in the Swachhata Abhiyan in her home constituency of Shalimar Bagh, emphasizing the campaign's long-term vision. Swachhata Abhiyan is not a one-day event but a continuous commitment, she said, urging citizens to take pride in their surroundings and refrain from littering or defacing public spaces. Gupta reaffirmed her administration's resolve to maintain Delhi's cleanliness, stating we will not tolerate defacement in our pursuit of a cleaner Delhi. The event saw active participation from local residents and civic volunteers, reinforcing the message of community-driven sanitation efforts. स्वच्छता अभियान एक लगातार करने वाला काम है, कोई एक दिन का या कुछ घंटों का ड्राइव नहीं है। ये हम सब भारतीयों को समझना होगा कि ये शहर हमारा है, ये देश हमारा है, और इस देश को यदि हम कुछ भी कूड़ा फेंकते हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ वहाँ तंबाकू के पाउच पड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ पानी की बोतलें पड़ी हैं, दोने पत्तल पड़े हैं, भंडारे करके हम वहीं छोड़ देते हैं, पोस्टर चिपके हुए हैं, ये सब इस शहर को गंदा कर रहे हैं। और एक दिन एक घंटे की स्वच्छता से कुछ नहीं होना, ये लगातार करने वाला काम है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज हमने रिंग रोड की ये ड्राइव ली है और पूरी रिंग रोड में हर जगह पे आज दिल्ली के लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। हजारों लोगों ने आज इसमें पार्टिसिपेशन किया है और मैं ये सोचती हूँ कि ये सारा का सारा ड्राइव ये काम लगातार करने वाला है। संस्थाएं करें, RAA करें, जनप्रतिनिधि करें, अधिकारी करें, हर व्यक्ति के करने वाला काम है, रोजाना हर घड़ी करने वाला काम है, तभी हमारा ये शहर साफ सुथरा रह पाएगा। मेरा फिर से सभी दिल्ली वासियों से निवेदन है कि कृपया करके वॉल राइटिंग और पोस्टर लगा करके शहर को गंदा ना करें। ये सच में एक बहुत बड़ा अपराध है जो हम अपने शहर को लगातार गंदा कर रहे हैं। विशेष रूप से नेताओं से मेरा निवेदन है कि कृपया करके और कम से कम मेरी फोटो के साथ कोई पोस्टर लगाने की गुस्ताखी ना करें। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, किसी भी तरह की डिफेसमेंट इस शहर की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार स्वच्छता करनी होगी, हम सबको, अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा, जनता को। In a major breakthrough for anti-Naxal Operation Buster, IG Sundar Rajpi confirmed that two senior Maoist leaders, Katta Ramchandra Reddy and Kadri Satyanarayan Reddy, were killed in an encounter in the Amjubad region of Narayanpur district, Chhattisgarh. Both were Central Committee members of the banned CPI Maoist and carried a bounty of rupees 40 lakh each. The operation, based on intelligence inputs, led to a prolonged exchange of fire, after which security forces recovered their bodies, along with an AK-47 INSAS rifle, a barrel grenade launcher, explosives and Maoist literature. The slain leader, natives of Karimnagar, Telangana, had been active in the Dandakaranya Special Zonal Committee for over 3 decades and were responsible for numerous violent attacks on civilians and security personnel. अभियान के दौरान आज दिनांक 22 सितंबर को प्रातः से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में 2 पुरुष माओवादी कैडर का डेड बॉडी, AK-47 इंसास राइफल और काफ़ी अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी घटनास्थल से बरामद की गए थे। दोनों माओवादी कैडर का शिनाख्ती सेंट्रल कमेटी मेंबर राजू उर्फ KRC उर्फ गुडसा हुसैनी के रूप में तथा दूसरा माओवादी कैडर का शिनाख्ती सत्यनारायण रेड्डी उर्फ गौसा दादा के रूप में हुई। दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर्स विगत कई वर्षों से दंडकारण्य इलाके में अनेक घटना में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता रहा। कई सुरक्षा बल की जवानों को शहादत में। That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.